Hello student, good morning. Today's lecture is vertical curve. So in this lecture we will go through these two topics. The first one is the vertical curve and the second topic is we will find the formula for the length of vertical curve. So length of vertical curve we will also find. So vertical curve basically are those curve which is occurs on vertical plane, right? So we have like this is my x-axis, this is my y-axis. Okay, so whenever I am talking about x and y, then the plane is your horizontal plane. But if I am talking about this is my x, this is my z, and here we have the y, so the curve which is occur on vertical plane like this one plane, xz plane, as well as zy plane. So in this plane, if I am drawing any curve, then that curve is known as vertical curve. Basically z axis का होना must है, ठीक है? तो vertical curves in transportation is very useful whenever we change our gradient of roads, and we already cover how many types of gradient we have. We have 4 types: exception, ruling, limiting, and minimum. So these are the 4 gradients, but whenever these gradients change their value from one value to another value, suppose this is the level A, level of ground at A position, and here we have a level of ground at B position. Okay, so if I am going to change my alignment of road from this position to this position, so we need a curve in vertical plane, and there the vertical plane can be useful for transportation engineering, or we can say in highway engineering. The same vertical curve is also applied for railway engineering whenever we change the gradient, right? So basically we have 2 types of vertical curve. The first one is summit curve, and we can say that this is the crest curve, and the another one is valley curve, or we can say this is a sag curve. Now I am going to differentiate these 2 types of curves with figure. So let's take an example. The first example for summit curve, or we can say sag curve. Summit curve versus sag curve. So first I am going to tell you about the sag curve. So sag curve is basically when you are going to like this is your vehicle and this will going in this direction. So this is the sag curve, and the summit curve is going to opposite of the first figure. In this case we have like this, there is a hump type, so in this case this is the vehicle at position A and it is moving like this direction. Okay, so this is the summit curve and this one is valley curve, or we can say the sag curve. So what is the basic difference? The basic difference in this, the appearance of the curve, right? Here we have a concavity. If you see from the top, this curve, you will see the concavity toward the upwards. In this direction we have convexity toward the upward direction. This is the only difference, and now we will understand that how we design the length of these 2 curves with different approaches. The first one I will solve for the summit curve. So this is the first case of summit curve, right? So first of all we have to understand that what type of curve we will introduce while we are constructing our pavement. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना है. दूसरी चीज़ हमें ये समझना है
कि समिट कर्व में डिजाइनिंग पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं जब हम उसकी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो समिट कर्व जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सपोज ये मेरे पास एक सर्कुलर समिट कर्व है, फ्रॉम ए टू बी पोजीशन जा रहा है। ठीक है, अब आइडियल केस में मैं इसको सर्कुलर कर्व क्यों रखना चाहूँगा, देयर आर सम प्रीरिक्विजिट थिंग्स हेयर जिनको हमें समझना जरूरी है। दिस इज माय व्हीकल विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब जब ये व्हीकल मूव करेगा तो इसको सामने देखने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम साइड डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे जो व्हीकल देखेगा वो देखेगा साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका फर्स्ट पैरामीटर आ चुका है कि जब भी आप समिट कर्व को डिजाइन करेंगे तो आपको साइड डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, और या फिर आप साइड डिस्टेंस इतनी प्रोवाइड करें जिससे ये व्हीकल सामने आने वाले व्हीकल को या फिर ओवरटेकिंग मैन्यूवर कर सके। सो साइड डिस्टेंस हमारे पास दो तरीके की होती है। एक हमारे पास होती है एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एंड एक हमारे पास होती है ओएसडी या फिर आईएसडी। ठीक है, ओएसडी जहां पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते वहां पे हम आईएसडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक थर्ड हमारे पास होती है ओएसडी होती है। ठीक है, तो आईएसडी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होती है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पहले से पता है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास एसएसडी की हो गई और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। So from the first thing you will understand, इस फर्स्ट पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि हमें ये जो समिट कर्व है इसमें जब हम इसे डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एसएसडी और ओएसडी के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी सर्कुलर कर्व पे मूव करते हैं तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। अगर आप ध्यान देंगे सो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर एक्ट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा यहाँ की तरफ। तो हमें इस फोर्स को काउंटर करना होगा। ठीक है, रेडियस कहीं यहीं पे होगा तो इस फोर्स को काउंटर करना होगा। लेकिन आपको पता है इस व्हीकल का भी एक वेट होगा जो उसको नीचे की तरफ ही ला रहा होगा। तो इस केस में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो टोटली इस वेट की वजह से, क्योंकि जो वेट होता है वो भी हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा वेट है वो इस चीज को पूरा काउंटर कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लग रहा है टुवर्ड द जेड डायरेक्शन में। और क्योंकि हमारा जो वेट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेट है इट इज फार फार ग्रेटर देन दिस पी वैल्यू, हेंस इट इज कैपेबल टू काउंटर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा वेट, गाड़ी का जो वेट है वो इनफ है उसको काउंटर करने के लिए, और हम समिट कर्व पे इतनी हाई स्पीड से भी मूव नहीं करते हैं। तो बेसिकली जब हम समिट कर्व डिजाइन करेंगे लेंथ के लिए तो वहां पे हम साइड डिस्टेंस को ही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट ये भी बना है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्ट नहीं करेंगे। अब आपको अब तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि जब भी हमें ये साइड डिस्टेंस हम बात करते हैं तो मैं एक और कर्व बना लेता हूँ। सपोज दिस इज माय कर्व। अब मैं इसके शेप के बारे में, थर्ड पॉइंट जो है वो शेप के बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहते हो कि जब भी आप किसी भी पोजीशन पे हो फ्रॉम ए टू बी आप किसी भी पोजीशन पे हो इस समिट कर्व पे, तो वहां पे आपकी एसएसडी या आईएसडी आपके लिए सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस 1-2 पॉइंट पे हूँ और यहाँ पे मैं B2 पॉइंट पे हूँ, B3 पॉइंट पे हूँ या फिर A3 पॉइंट पे हूँ, तो यहाँ से जब मैं देखूँ मतलब इस तरीके से तो इतनी डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है। सिमिलरली हाइट को ऊपर करके इतनी डिस्टेंस दिख रही है, इतनी दिख रही है, इतनी दिख रही है। तो
इन सिंपल वर्ड कि जब ये हाइट है, ये हाइट किसकी है, ये हाइट आपकी कैपिटल H कहेंगे हम इसको, दिस इज द हाइट ऑफ ड्राइवर विच इज 1.2 मीटर, राइट। तो ये जो हाइट है ड्राइवर की, आई लेवल की हाइट है, उसको जो भी डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो हर पोजीशन पे सेम होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे उसको L डिस्टेंस दिख रही है, तो यहाँ पे भी उसको L डिस्टेंस दिखनी चाहिए, इस पॉइंट पे भी L डिस्टेंस दिखनी चाहिए, इस पॉइंट पे भी L डिस्टेंस दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे सब जगह पे आपको एक सेम यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, और ये तभी पॉसिबल है जब A2, A3, B3, B2 पॉइंट्स या ऑल पॉइंट्स which is occur between this A and B must possess a same property। और सेम प्रॉपर्टी possess करने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो, किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेम हो, यानी कि रेडियस रेडियस एंड रेडियस। तो यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो, रेडियस हो। यानी कि A से B आपको हमेशा सेम SSD देगी अगर A से B जो कर्व का शेप है वो क्या है, सर्कुलर है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि हमें जो साइड डिस्टेंस है SSD हो गया या OSD हो गया, वो हर पॉइंट्स पे कॉमन रखने हैं। वो हर पॉइंट पे तभी कॉमन होंगे जब सारे पॉइंट्स किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे जहां से हम उसे डिजाइन कर रहे हैं। जब अगर सारे पॉइंट्स किसी सेंटर पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पे है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। अब यही रेडियस तभी पॉसिबल होता है जब भी रेडियस आएगा, यानी कि रेडियस तब आता है जब सर्कुलर कर्व होता है। तो हमारा जो आइडियल शेप है वो समिट कर्व का, वो हमारा क्या है, सर्कुलर है। बट द कैलकुलेशन, अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है हॉरिजॉन्टल में इजी है, बट वर्टिकल में क्या करना पड़ता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। यू हैव टू फिल दिस पोर्शन एंड यू हैव टू कट दिस पोर्शन, ठीक है। तो कटिंग एंड फिलिंग हो रही है वर्टिकल केसेस में, ठीक है। तो कटिंग एंड फिलिंग जब होती है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं कि कितना हमें फिल करना है, कितना कट्स करना है। सो दिस कैलकुलेशन इज वेरी टफ इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर कर्व ड्रॉ करना इजी है एज कंपेयर टू वर्टिकल प्लेन में। तो हम ये जो सर्कुलर कर्व है, हमें बेसिकली हमें सर्कुलर कर्व चाहिए, बट इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और कर्व में, ठीक, जिसकी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो ये जो कर्व हमारे पास होता है जिसकी कैलकुलेशन इजी होती है वो हमारे पास होता है पैराबोला, ठीक है। और ये पैराबोला भी हमारा क्या होगा, सिंपल पैराबोला होगा। तो पैराबोला में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने सर्कुलर कर्व को। आइडियली वी नीड सर्कुलर कर्व फॉर समिट कर्व। समिट कर्व का जो शेप होना चाहिए सर्कुलर कर्व होना चाहिए, बट क्योंकि उसकी कैलकुलेशन भले इजी है लेकिन उसको अचीव करना, कंस्ट्रक्ट प्रैक्टिकली उसको अचीव करना फील्ड में वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम पैराबोला पे शिफ्ट करते हैं जिसकी कैलकुलेशन भी इजी है और जिसको हम अचीव भी इजी कर सकते हैं, राइट। अब पैराबोला आपको पता ही होगा, पैराबोला इस तरीके से होता है। अब मैं इसको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ। तो अभी के लिए क्या है कि ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं लाइक दिस, अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज करूं तो ये जो डिस्टेंस आ जाती है इसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारी क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको ध्यान देना है, इसको हमें यूज करना है। बस यहाँ पे ये है कि ये जो a की वैल्यू जो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू द दिस कर्व, राइट। अब हम अपने फील्ड में बैक टू द फील्ड चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस है और ये हमारे पास एक पैराबोलिक कर्व है, राइट। अब ये पैराबोलिक कर्व होता है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व, ठीक है। ये हमारा क्रिस्ट पॉइंट है। तो एक तो यहाँ से टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, एक हम टेंजेंट यहाँ से ऐसे खींचेंगे। तो जहां पे ये मीट करेगी उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। और जो ये एंगल होता है इसको हम डेविएशन एंगल कहते हैं। सर्वे में हम इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में
इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल N से, राइट। सो दिस कैपिटल N इज अवर डेविएशन एंगल, राइट। अब डेविएशन मतलब डेविएट कर रहे हो आप। अब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये आपका एक्स एक्सिस था, तो आप कितने पे मूव कर रहे थे? आप मूव कर रहे थे ये जो है N1 विच इज पॉजिटिव एंगल। तो ये N1 स्लोप पे आप जा रहे थे, ठीक है। आप यहाँ से N1 स्लोप पे जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, आपको किसी ने मोड़ दिया और आप इस डायरेक्शन में क्या करने लगे, मुड़ने लगे। अब ये जो है आप इस डायरेक्शन में आने लगे। तो अगर मैं इसका स्लोप लूंगा इस तरीके से, दिस इज योर एक्स एक्सिस, अब ये जो स्लोप होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इसे नेगेटिव N2 कह सकते हैं, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव N2 है, ठीक है। तो बेसिकली जो डेविएशन एंगल हुआ यहाँ पे क्या हुआ, डेविएशन एंगल क्या हो गया, N1 आप पॉजिटिवली मूव कर रहे थे, नेगेटिवली आप N2 मूव कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ N, राइट। क्योंकि बेसिकली है क्या कि नेगेटिव, आप क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में आया, नेगेटिव डायरेक्शन में आने लग गए। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव एंगल है। तो ये, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2, राइट। देखिए डेविएशन एंगल का फॉर्मूला हमेशा होता है इनिशियल एंगल माइनस प्रोसीडिंग एंगल, ठीक है। सक्सेसिव एंगल माइनस प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे सक्सेसिव एंगल क्या है, सक्सेसिव एंगल N1 है, ठीक है। तो लेकिन N1 क्या है, पॉजिटिव N1 है, ठीक है। माइनस क्या करना, माइनस करना है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसीलिए नेगेटिव एंगल होगा और N2 होगा, ठीक है। तो जब ये बाहर आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो आपका ये वाला है ये आपका ज्यादा है, N कैपिटल N N1 से और N2 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो हमें फाइंड करना था, ठीक है। इसको और अगर आपको इसको और सिंपल वे में समझना है तो जो सिंपल वे इसको कहते हैं हम, इस तरीके से आप क्या करो, इसको आप x ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, N1 था, और यहाँ से यहाँ क्या है, N2 है। इन दोनों का समेशन ही क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 ही क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल N हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल वे डेविएशन एंगल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो दिस इज द डेविएशन एंगल, ओके। एंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज L। जो ये आर्क है, आर्क की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से L हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो नहीं, आर्क की लेंथ L हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नहीं हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये आर्क की लेंथ नहीं होगी, ये जो हमारा पॉइंट्स है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, जो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस थी वो हमने टोटल L ले लिया, यानी कि A से B की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, L हो गया। कौन से वाली, कॉर्ड की बात कर सकते हो, अगर आप सर्कुलर कर्व करोगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L हो गया। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू a x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू जो होती है, दिस a विल बी इक्वल टू n अपॉन 2l। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि n आपकी डेविएशन एंगल है और l जो है आपका वो डिस्टेंस है टोटल a से b पॉइंट का, और उसका आपका 2 टाइम लेना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये चीज को आपको समझना है इस तरीके से। सो दिस इज द लिटिल बिट अबाउट द पैराबोला। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं कि हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं लेंथ की। तो सबसे पहले हमारे पास है एक SSD है और एक हमारे पास OSD है। दोनों का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। तो SSD का मतलब ये होता है कि आपने h डिस्टेंस से स्मॉल h को देखा। h डिस्टेंस आपकी ड्राइवर हाइट है 1.2 मीटर होती है, और h स्मॉल मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल है जो आपका 15 सेंटीमीटर है या 0.15 सेंटीमीटर सड़क से ऊपर है। OSD में आप क्या करते हो, h डिस्टेंस से आप दूसरे h डिस्टेंस की यानी दूसरे व्हीकल को देख रहे हो। तो यहाँ पे ये 1.2 मीटर होता है और यहाँ पे ये 1.2 मीटर होता है।
तो क्योंकि इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो जब SSD होगा तो SSD में भी दो केस बनेंगे, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन SSD। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है L इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट H प्लस 2H का होल स्क्वायर। तो ये आपका फिगर फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये S की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करी गई है, ये S की वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ ये SSD है। H की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, स्मॉल h की वैल्यू ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, NS स्क्वायर अपॉन में अगर आप 2 इंटू 1.2 का स्क्वायर रूट करोगे प्लस 2 इंटू 0.15 का फिर से स्क्वायर रूट करने के बाद होल का स्क्वायर करोगे, सो दिस इज इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 4.4 वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये कैसे आता है। इसके अलावा जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला बन गया है। सम टाइम गेट्स में क्या होता है कि गेट में आपको ये जो स्मॉल h और कैपिटल H की वैल्यू है इसको चेंज करके दिया जाता है, तो आपको फिर वहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है, और ये हमने जो ये निकाला है ये हमारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिमिलरली इस वाले केस में भी लेंथ ऑफ पैराबोलिक कर्व और वी कैन से द समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, और साइड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, OSD है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो भी इसी तरीके से बनेगा, बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 बार आ जाएगा, स्मॉल h की जगह पे क्या हो गया, कैपिटल H कन्वर्ट हो गया, और ये जो S है ये O हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये OSD को हम क्या लिख रहे हैं, S और सफिक्स O लिख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हमने साइड डिस्टेंस की बात करी है सेकंड वाले केस में, तो SSD SO और ये यहाँ पे स्क्वायर में आ गया। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9.6 के आसपास हमारे पास वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास प्रोवाइड करता है 9.6। ठीक है, तो बस आपको ये वाली बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि फॉर्मूला आपका ये है, और अगर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ आई ड्राइवर, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। राइट, तो ये तो फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस इसमें जो होता है, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट केस का उल्टा कर देते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ पैराबोलिक कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन SSD। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, L इक्वल टू 2S माइनस ये जो है ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 4.4 अपॉन N। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए आपने क्या किया, अगर आपको इसको फॉर्मूले को याद रखना है, 2S SSD था, 2S में से आपने ये वाली वैल्यू को माइनस करा। ठीक है, और जो ये 2S है इसने आपने यहाँ पे रख लिया एक तरीके से याद करने के लिए शॉर्ट टर्म से, तो ये आपका ये हो गया। अगेन सेम चीज, ये जो 4.4 है, ये 4.4 आपका किसका वैल्यू है, ये अंडर रूट 2H प्लस अंडर रूट 2 स्मॉल h का होल स्क्वायर का वैल्यू है, और क्वेश्चन में ये चीज़ें चेंज करी जा सकती है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ न्यूमेरिकल्स। राइट, सेम चीज जब आप OSD के लिए करेंगे, व्हेन लेंथ ऑफ पैराबोलिक कर्व इज लेस देन OSD, तो इस केस में भी आपको यही करना है, 2S माइनस 9.6 अपॉन N, वेयर N इज योर deviation angle. So this is the formula of
समिट कर्व, ठीक है। तो ये हमारा समिट कर्व का फॉर्मूला बन चुका है, इसी पे ही हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में कहीं पे भी कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको ये भी चीज़ समझनी है कि जो फॉर्मूला है इट इज़ अ पार्ट ऑफ 2L इक्वल टू n अपॉन y का फॉर्मूला है, या n अपॉन a का फॉर्मूला है। ये इसका पार्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैपिटल A रखा है, ये सेम वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। इसी को ही हमने यूज किया है, इस कांस्टेंट को हमने यूज किया है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ समिट कर्व। सो दिस इज अबाउट समिट कर्व। अब हम मूव कर रहे हैं वैली कर्व पे। सो इन केस ऑफ वैली कर्व, लेट्स ड्रॉ ए वैली कर्व लाइक दिस इज। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी लेंथ निकालने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वैली कर्व इस तरीके से है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इसका जो डेविएशन एंगल होगा वो किस तरीके से होगा, देखो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है, और आपको किसी ने पकड़ के इस डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दिया, मतलब आप फिर एक टेंजेंट लेंगे बी से इस तरीके से, तो आप मूव कहाँ करने लगे, यहाँ मूव करने लगे। तो डेविएशन एंगल आपका क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा वो हम कैपिटल एन करेंगे। अब ये कैपिटल एन कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका ये है, इसको मैं आपको अलग से अभी जब लेक्चर एंड होगा उस टाइम पे मैं समझाऊंगा। फॉर इन दिस केस लेट्स टेक दिस इज द एक्स एक्सिस। तो जो पहला एंगल था वो कौन सी डायरेक्शन में था, नेगेटिव n1। जो दूसरा एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव n2 है। डेविएशन एंगल का हमेशा जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव एंगल दैट इज n1 माइनस प्रोसीडिंग एंगल यानी कि प्लस n2। तो यहाँ पे अगर हम इनको माइनस करेंगे तो नेगेटिव n1 प्लस n2 का होल ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कह भी सकते हो कि आपका जो एंगल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बट दिस इज द समेशन ऑफ n1 एंड n2 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी समझ में आ गई, तो ये डेविएशन एंगल समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले डिजाइनिंग क्राइटेरिया कैसे करेंगे। दिस इज माय व्हीकल व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्या इसके लिए साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फॉर इन टर्म्स ऑफ समिट कर्व, साइड डिस्टेंस, क्या साइड डिस्टेंस के लिए मैटर कर रहा है, SSD एंड OSD इसके लिए मैटर कर रहा है, नहीं, ये दोनों में से कोई भी इसके लिए मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक वैली कर्व है एंड द साइट ऑफ दिस व्हीकल इज लाइक दिस। तो ये यहाँ से यहाँ तक देख सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, राइट। दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज z डायरेक्शन। तो क्योंकि ये वैली कर्व है तो वो देख सकता है A पोजीशन से B पोजीशन तक की सारी जो साइड डिस्टेंस है उसमें वो देख सकता है कितने व्हीकल है। तो साइड डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन कब नहीं है, डे टाइम में, ठीक है। तो डे टाइम में साइड डिस्टेंस कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट व्हाट अबाउट द नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्योंकि दिखेगा तो है नहीं, तो नाइट टाइम में साइड डिस्टेंस एक कंसिडरेशन है। कितना कंसिडरेशन है नाइट टाइम में, देखिए कितना क्या होता है नाइट टाइम में, जो व्हीकल होता है वो अपनी हेडलाइट के जो लाइट होती है उस पर डिपेंड करता है। अब जो हेडलाइट की जो व्हीकल की हेडलाइट होती है वो इस तरीके से होती है, उसकी पहले तो ग्राउंड से एक हाइट होगी, ठीक है। सो उसकी ग्राउंड से एक हाइट होगी, सपोज टेक h1 हाइट, फिर उसके बाद वो एक एंगल पे भी मूव करती है जिसको हमने अल्फा कह दिया। तो बेसिकली ये जो साइड डिस्टेंस है व्हीकल की, इट इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर। द फर्स्ट वन इज h1 विच इज द हेडलाइट हाइट विच इज 0.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड एक अल्फा होता है जो कि एंगल डिस्पर्स करता है लाइट को, डिस्पर्शन एंगल होता है, तो वो होता है 1 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमें साइड डिस्टेंस कितना मिलता है। बेसिकली साइड डिस्टेंस कितना मिला, एक तो आपको इस tan अल्फा की हेल्प से आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालोगे, एक आप इस हाइट की वजह से निकालोगे कि कितना डिस्टेंस आया, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे।
तो हमें नाइट डिस्टेंस में दो कंस्टेंट समझ में आ गए बेसिकली। एक हमारे पास h1 है हाइट, हेडलाइट हाइट, और एक हमारे पास उसका एंगल है, ठीक है। उसी से ही हम नाइट में फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो नाइट में फाइंड करा हमने, ये तो चलो SSD के लिए हो गया हेडलाइट से, क्योंकि आप एक डायरेक्शन तक देख पा रहे हो हेडलाइट से, ठीक है। बट वट अबाउट दी OSD? OSD का इस तरीके से होता है कि जो दूसरा व्हीकल आता है उसकी भी क्या होती है, हेडलाइट पड़ती है, ठीक है। तो दोनों व्हीकल की हेडलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से हम इसको OSD के लिए नहीं डिजाइन करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही दूसरे व्हीकल की हेडलाइट से हमें इतना जो डिस्टेंस है वो क्लियरली विजिबल रहता है। दिस इज माय साइड डिस्टेंस एट नाइट, और इसके अकॉर्डिंग मैं ओवरटेकिंग मैन्यूवर को परफॉर्म कर सकता हूँ नाइट में अपने ही सिर्फ हेडलाइट से। अगर ये हेडलाइट सामने से नहीं आ रही तो मैं ओवरटेक नहीं करूंगा, अगर ये हेडलाइट सामने से आ रही है तो मैं ओवरटेक नहीं करूंगा। अगर ये सामने से नहीं आ रही है तो इसका मतलब सामने कोई व्हीकल नहीं है, तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब हम वैली कर्व डिसाइड करते हैं तो वैली कर्व में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साइड डिस्टेंस मैटर करता है एट द टाइम ऑफ नाइट, और उस साइड डिस्टेंस में भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो होती है जिसको हम SSD कहते हैं उसी को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है OSD को वो हम कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाइट टाइम में हमें सामने आने वाले व्हीकल की लाइट से पता चल जाता है कि हमें ओवरटेकिंग मैन्यूवर करना है या नहीं करना है। तो सेकंड क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन नीचे है, और जो ये फोर्स होगा क्योंकि सेंटर से लगेगा फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे है। इस वजह से जो पैसेंजर है उसको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। बट आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सिर्फ हाफ पोर्शन तक यूज हो रहा है इस कर्व के उसमें, ठीक है। तो सिर्फ हमें हाफ पोर्शन के लिए इसको डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। अब आपके पास दो चीजें यहाँ पे आ चुकी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ चुका है और साइड डिस्टेंस भी आ चुका है। तो अब आप कमेंट करेंगे बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स, डिजाइनिंग पैरामीटर्स, वी विल कमेंट शेप ऑफ वैली कर्व। अब शेप ऑफ वैली कर्व क्या होगा फिर, जब भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड कोई भी क्राइटेरिया आता है हम हमेशा ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं, और ट्रांजिशन कर्व हमारे पास स्पाइरल, क्यूबिक स्पाइरल, लेमिनस्केट, ये सारे होते हैं। इन सब का पर्पस हमारे पास यही होता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको पता होगा ट्रांजिशन कर्व के उसमें 75 प्लस V इन kmph, ठीक है। ये हमारी होती है इस सेंट्रीफ्यूगल जो रेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का जो रेट होता है, इसको हम कोशिश करते हैं इट विल बी बिटवीन 0.4 टू 0.8 मीटर क्यूब पर टाइम, मीटर पर, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की चेंज इन टाइम, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड पर टाइम हो गया। तो ये हम इसको कह सकते हैं मीटर और सेकंड स्क्वायर कह दीजिए आप इसको, या टाइम स्क्वायर कह दीजिए। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इसको हम मेंटेन करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा 0.8 से ऊपर हो। अगर ऐसा होता है तो पैसेंजर फील डिस्कम्फर्ट, तो उस चीज के लिए हमें इसे डिजाइन करना पड़ता है, राइट। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वैली कर्व। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन लेंथ ऑफ वैली कर्व। So here is the figure and the distance between A to B point is L। तो जो इसका मिड पॉइंट है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है दो पार्ट्स में, L/2 और L/2। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो हमारा नेगेटिव N1 है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो भी हमारा क्या है, नेगेटिव N2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेविएशन एंगल हमारा N हो गया, राइट। अब जब सेंट्रीफ्यूगल के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं फॉर सेंट्रीफ्यूगल केस। तो लेंथ ऑफ वैली
कर्व जो कि हमारे पास L है, यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व हमारे पास टोटल L है, इसको हम डिजाइन कर रहे हैं फॉर सेंट्रीफ्यूगल पर्पस के लिए या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के लिए। तो आपको पता होगा ट्रांजिशन कर्व में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो कि हमने स्पाइरल लिया रहता है इसलिए हम S लिखते हैं, ये हमारा होता है V³/CR, राइट, ये V³/CR होता है। तो इसी को ही हमें यूटिलाइज करना है यहाँ पे। बस सिंपल सी चीज ये है कि ये R क्या होगा हमारा, R देखिए हमारा क्या होता है, सपोज दिस इज माई सर्कल, दिस इज माई R एंड हेयर वी हैव दिस डेविएशन एंगल। तो आर्क अपॉन रेडियस गिव्स द वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल, ये हमें पता होता है, यानी कि R क्या होगा हमारे पास, आर्क अपॉन डेविएशन एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क कितना है, यहाँ पे आर्क हमारे पास क्या है, इतना है, सिर्फ इतने रीजन में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। लेट मी हाईलाइट दिस पोर्शन। तो हमारे पास यहाँ पे आर्क क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो दिस इज L/2 n इक्वल टू R, राइट। तो बस हमें यही चीज यूटिलाइज करनी है यहाँ पे, और फिर हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो जाएगा, NS। अब NS क्या है यहाँ पे, इट इज अ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, V³ डिवाइडेड बाय C, R की वैल्यू L मल्टीप्लाई 2n, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि जो ये LS है इसको हमने इक्वल कहा है अपने आर्क के बराबर, ठीक है, और आर्क की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है L/2 ले ली है। तो इसीलिए ये जो LS है इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ अपने L पोर्शन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, लेंथ टोटल लेंथ ऑफ उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला बना है पूरी तरीके से ये L इक्वल टू V³/CL मल्टीप्लाई 2n हुआ है, राइट। फ्रॉम हेयर अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं हम इसको, कि हम यहाँ पे जो चीजें चेंज कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने क्या करा, ये जो LS है स्पाइरल वाला इसको कन्वर्ट करा है अपने L में, अपने टोटल लेंथ में, ठीक है। तो ये जो हमारी टोटल लेंथ है वो उसको हमने कैपिटल L से डिनोट किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे हमारे पास क्या था, LS अपॉन n होना चाहिए इन दिस केस, बट यहाँ पे जो LS है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल L है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से यूज करा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L² इक्वल टू कैपिटल L² इक्वल टू V³/2n/C, राइट। तो जब इसी को ही अगर हम यूज करें तो ये 2V³n/C का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ ऑफ वैली कर्व व्हाइल वी आर टेकिंग रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास जनरली मैंने आपको बताया 0.4 से 0.8 होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा और ये आपकी लगभग इतने के बराबर होती है 0.6 फॉर सेफ साइड। तो अगर नहीं दिया होगा तो आप 0.6 से सॉल्व करेंगे इसको। तो ऑन टेकिंग दीज वैल्यू ओवर दिस फॉर्मूला, जब ये हम 0.6 को C की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा फॉर लेंथ के लिए, जो कि आपको याद रखना है 0.38 NV। अब V स्मॉल है, इसको भी हम कैपिटल में कन्वर्ट के बाद हमारा कैपिटल V, क्योंकि हमारी जो स्पीड्स होती है वो kmph में होती है, V³ डिवाइडेड ब्रैकेट के बाद 1/2। So this is the first formula which you have to remember while calculating the length of valley curve. The second formula is directly related to your side distance. The second formula is related to your side distance, length of valley curve based on side distance। तो side distance का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट टाइम सबमिट कर में पढ़ा था, उसमें कुछ हमारे पास n डेविएशन एंगल होता है, s हमारे पास साइड डिस्टेंस होता है, और ये हमारे पास हम इसका स्क्वायर करते हैं डिवाइड बाय, और यहाँ पे हम क्या करते थे √2 करते थे। बट इस केस में हमें ध्यान देना है कि हम यहाँ पे करेंगे 2h1 प्लस 2 अल्फा
2s tan अल्फा। अब यहाँ पे कोई 1/2 या 1/2 नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ 1/2 करते तो इसको अंडर रूट करते। तो ये हमारा फिगर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें और सॉल्व करनी है। फिगर के अकॉर्डिंग हमारा लेंथ ये निकला, h हमारे पास 0.75 मीटर है, s हमारे पास ऑलरेडी वी डिसाइडेड दिस एस अवर SSD, तो यहाँ पे कोई OSD का कंसेप्ट नहीं है। अल्फा हमारे पास 1 डिग्री होता है, जो बीम की लाइट होती है, हेडलाइट की बीम की लाइट होती है 1 डिग्री होती है। ऑन सॉल्विंग दिस वी हैव NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035s, राइट। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें ये s है, ये s है, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व के दो फॉर्मूले हैं और लेंथ ऑफ समिट कर्व के भी दो फॉर्मूले हैं। तो अगर छोटे से नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये जो केस है ये तभी पॉसिबल है व्हेन लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड SSD या साइड डिस्टेंस। सेकंड केस में लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन SSD। इस केस में, जिस केस में SSD बड़ा होता है उस केस में जो लेंथ होती है वो इस तरीके से निकलती है, 1.5 प्लस 0.035 s तो आएगा ही, डिवाइडेड बाय n, ओनली यहाँ पे आ जाएगा n आ जाएगा। सो दिस इज डायरेक्ट फार्मूला। इस पे ज़्यादा गेट पे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला होते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि वो आपकी अल्फा की वैल्यू या h1 की वैल्यू चेंज करे, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। अदरवाइज आपका यही है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा पूरा एक्सप्रेशन। और फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बोले तो सेंट्रीफ्यूगल से जो फार्मूला निकला हमारा, सेंट्रीफ्यूगल से, दिस इज माय इक्वेशन 1, और इसके बाद एक हमारा निकला, ये हमारी इक्वेशन 2.2 है, और ये हमारा इक्वेशन 2.1 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे लेंथ ऑफ वैली कर्व के लिए, ठीक है। बट ये केस हमारा समिट कर्व में नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि समिट कर्व के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ साइड डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो समिट कर्व के उसमें हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, और उसकी कंडीशन भी एक ही बनेगी। तो इसीलिए समिट कर्व के उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। वैली कर्व में फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो सकती है, बट आपको उसको थोड़ा सा याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो फाइनल एक्सप्रेशन है, और एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो 3 स्क्रीनशॉट लेने पे आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ इस केस में फॉर्मूले ही याद रखने हैं, और थोड़ा सा जो जानकारी है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो शेप है उस पर हम कमेंट कर चुके हैं कि शेप को हमें कैसा रखना है। अब हमें डेविएशन एंगल पे कमेंट करना है, और डेविएशन एंगल हमारा सबसे पहले मैं कर रहा हूँ वैली कर्व, क्योंकि अभी हमने लास्ट में वैली कर्व पढ़ा है। तो वैली कर्व डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये आपका फर्स्ट केस तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका डेविएशन जो एंगल है कैपिटल N इक्वल टू -n1 प्लस n2 को ब्रैकेट में रखा हमने, ठीक है। ये केस हम कवर कर चुके हैं। अब आपका एक वैली कर्व इस तरीके से होता है कि दिस इज 0 मूविंग टू नेगेटिव। तो ये आपका जो डेविएशन एंगल होगा यहाँ पे, वो जो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, और जो सेकंड वाला है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, माइनस पॉजिटिव n2, तो ये आपका हो जाएगा -n2, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस। इसके अलावा फिर हम मूव करते हैं अपने थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या होगा कि ये भी सर्टेन डायरेक्शन पे है, और उसके बाद यहाँ पे भी डायरेक्शन में है, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज डेविएशन एंगल। अब जो फर्स्ट वाला है वो तो आपका क्या है, पॉजिटिव n1, बट सेकंड वाला जो है वो आपका कैसा है, नेगेटिव n2। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी n1 की, इनिशियल एंगल आपका प्लस में माइनस n2। देखिए माइनस ये लगाना जरूरी है, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, बस ये याद रखिए,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो n1 प्लस n2 आएगी, राइट। सो दिस इज योर डेविएशन एंगल हो गया। उसके बाद फोर्थ केस में चलेंगे। तो फोर्थ केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला एंगल हमारा 0 होगा, n2 विल बी 0 और n1 हमारा क्या होगा, नेगेटिव है, n1 हमारा, सॉरी ये तो हमारा पॉजिटिव जा रहा है ना, n1 हमारा नेगेटिव है, ठीक है। इस केस में ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा डेविएशन एंगल इंटरसेक्शन पे होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये n यहाँ पे ये होगा, तो n यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -n1 माइनस, अब यहाँ पे दूसरा तो 0 है तो ये हो जाएगा -n1। दिस इज योर डेविएशन एंगल। यहाँ पे जो ऊपर जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें हमारा क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फोर्थ एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ गया, जहाँ पे ये नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव था, दिस इज द पॉजिटिव एंगल। तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा ये पॉजिटिव जा रहा था तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ वैली कर्व। प्लीज करेक्ट, अगर मैंने आपको थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूज कर दिया हो तो आप इसे देख सकते हो। जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वो पॉजिटिव है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल से नीचे आएगी वो नेगेटिव है, बस इसको याद रखिए। अब समिट कर्व में हम केस करते हैं। सेकंड हमारे पास है समिट कर्व। समिट कर्व में आपके पास इस तरीके से फिगर होगा, इस तरीके से फिगर होगा, मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, फिर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव n1 नेगेटिव n2, तो जो आपका n होगा वो क्या होगा, n1 माइनस नेगेटिव n2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो n1 तो 0 हो गया, बस n2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस n2, that will be equal to positive n2. So this is the deviation angle for case second. तो ये case second का deviation angle हो गया, और deviation angle कुछ इस तरीके से बनेगा। इस केस में deviation angle इस तरीके से बनेगा। मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड केस में deviation angle इस तरीके से बनेगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो पॉजिटिव है, सेकंड वाला हमारा 0 है, तो इक्वल टू n1 ही आएगा। अब एक और होता है जिसमें हमारा नेगेटिव मीट विद नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव मीट विद नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे हमारा डेविएशन एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो होगा ये नेगेटिव n1 है, ये भी जो होगा नीचे की तरफ आ रहा है लाइन, एक तरीके से आप अगर टेंजेंट खींचेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव n2 होगा। तो यहाँ पे -n1 माइनस n2 दोनों को अगर हम करेंगे तो -n1 प्लस n2 की यहाँ पे वैल्यू आ गई डेविएशन एंगल की। सो दिस इज अबाउट द डेविएशन एंगल, हाउ वी विल कैलकुलेट द डेविएशन एंगल 3 एंड 4th फिगर में। तो एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि ये एक सीधी लाइन खींचिए, इस सीधी लाइन से ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव एंगल है, जो इससे नीचे होगा वो नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो बस आपको ये लाइन ध्यान देनी है, और n जो होगा वो फर्स्ट एंगल जिस लाइन में है माइनस सेकंड एंगल करना है, और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड है उनके अंदर ब्रैकेट के अंदर उनके साइन रखने हैं, फिर उनको सॉल्व करना है, तो इससे आपका डेविएशन एंगल निकल जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू कैलकुलेट द डेविएशन एंगल। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इस पूरे लेक्चर को। दिस इज द क्रिंच ऑफ दिस होल
वीक लेक्चर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या किया, वर्टिकल कर्व पे आए, वर्टिकल कर्व में समिट कर्व और वैली कर्व क्या होते हैं, किस प्लेन में होते हैं वो डिसाइड किया, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी के बारे में पता करा। फिर हमने समिट कर्व के केस में जो पैरामीटर थे, जो हमारे साइड डिस्टेंस और ये जो सेंट्रीफ्यूगल थे उसके बारे में कमेंट करा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पैरामीटर सेंट्रीफ्यूगल यहाँ से बाय डिफॉल्ट हट गया, बस साइड डिस्टेंस रहा। जब साइड डिस्टेंस रहा तो हमें फिर ये चेक करना पड़ा कि साइड डिस्टेंस हर जगह पे सेम होनी चाहिए, जिसके लिए हमने फिर शेप में कमेंट किया। शेप में कमेंट करने पे हमें पता चला कि सर्कुलर कर्व इज द आइडियल कर्व फॉर समिट कर्व, बट हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग एंड कटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। हम उसको बार बार एक्यूरेट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। टू मेंटेन दिस कंटिन्यूअस आर विच इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, तो हम इसे चेंज करते हैं थोड़ा सा सिंपल पैराबोला में, जो कि सिमिलर है सर्कुलर के और अचीव करना इजी है, कंस्ट्रक्ट करना इजी है, इसलिए हम पैराबोला में मूव करें। फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, एक पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व किया बेस्ड ऑन डेविएशन एंगल। हमने एक कांस्टेंट है जो हमारा a है उसकी वैल्यू फाइंड करी। इसी इक्वेशन को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑन समिट कर्व। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया था तो एक ही क्राइटेरिया के हमने फॉर्मूले यूज करे, बट इसके भी 4 बने हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, बट डिजाइनिंग पैरामीटर एक ही है। तो ये यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे डिजाइनिंग पैरामीटर आपका सिर्फ एक ही है। तो आपको इसमें जो याद रखना है वो है 9.6 और 4.4, और एक आपको याद रखना है कि कैसे जब SSD बड़ी हो जाती है, तो जब बड़ी SSD को हम कैसे किस तरीके से चेंज करते हैं, तो वो भी आपको पता चल गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमने वैली कर्व के बारे में डिसाइड किया। तो वैली कर्व के बारे में जब हमने डिसीजन लिया तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे साइड डिस्टेंस मैटर करती है नाइट के टाइम पे, वो भी हेडलाइट की साइड डिस्टेंस से हम देखते हैं। तो इसमें जो ड्राइवर का आई लेवल है वो और जो ऑब्स्टिकल्स है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक अल्फा एंगल है जो कि हेडलाइट की बीम बनाती है, और साथ में H1 डिस्टेंस है जो हेडलाइट की हाइट होती है रोड से ऊपर, जिसकी वैल्यू हम 0.75 मीटर लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने लेंथ को डिजाइन करना है। लेकिन साथ में यहीं पे एक हाफ पोर्शन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। वो हाफ पोर्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन केस के उसमें। तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो हमारा ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो गाड़ी में, एकदम से ना हो, ताकि जर्क ना हो। इसी चीज को हम कंफर्टनेस से शो करते हैं। तो ये जो कंफर्टनेस से शो करते हैं उसके बेसिस पे हमें लेंथ निकालनी है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन कर्व वी हैव दिस फॉर्मूला। अब इसी में ही जो LS है वो 2 टाइम्स हो जाएगा इस L2 के। तो अभी हमने क्या किया, R की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस निकाला, बट क्योंकि हाफ पोर्शन तक ही लेना है इसीलिए आर्क हमारा हाफ ही होगा, जो कि हमने ले लिया L/2, और जो डेविएशन एंगल है वो हमारा होता है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। इसके बाद क्योंकि हम LS को कन्वर्ट कर चुके हैं लेंथ में, तो जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ये लेंथ आपकी होनी चाहिए, देखिए आप चाहो तो ये लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, LS होनी चाहिए। तो जो लेंथ निकली हमारी वो इस फॉर्मूले से निकली, स्क्वायर आ गया। उसके बाद जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा लास्ट में ये फॉर्मूला आया। बेसिकली हमें यही याद रखना है, 0.03 है या 0.38, ठीक है, 0.38, ये V कैपिटल V स्क्वायर 1/2 एक इससे निकला, और दूसरा हमारा वो जो हमने पहले पढ़ चुके थे फॉर्मूला बेस्ड ऑन पैराबोला, तो वो हमने यहाँ पे यूज किया है। क्योंकि क्यूबिक पैराबोला भी इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इसीलिए हमने वो इक्वेशन यहाँ भी एप्लीकेबल करी। बस यहाँ पे चेंजेस ये है कि यहाँ पे 1/2 नहीं है, साथ में यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, बाकी सारी चीजें हमने सेम रखी। और उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो हमने भी इसके 2.1 एंड 2.2 में 2 इक्वेशन बना दी। बेस्ड ऑन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो ज्यादा होगा वही वैल्यू हम लेंगे वैली कर्व के लिए। उसके बाद हमने डेविएशन एंगल पे कमेंट किया, थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िएगा, जो एंगल पॉजिटिव है ऊपर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव, अगर कोई लाइन नीचे की तरफ आ रही है वो नेगेटिव। उसके बेसिस पे फिर हमें फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल करना है। अब फर्स्ट एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है वो यहाँ रखिए, सेकंड एंगल पॉजिटिव नेगेटिव है उसको यहाँ रखिए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका डेविएशन एंगल आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा।
दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपकी ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट पेमेंट की खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे ट्रैफिक पे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे, उसको हम आपको लेक्चर के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।